So, Namaskar. This is Alok. I'm 24 into 7 serving for Manovika's family with my sweet daughter and my dedicated wife and one special national awardee. As a rehabilitation specialist for person with intellectual and developmental disability and the founder of Manovika's family, I love and celebrate diversity every moment in my life. Welcome to Mashwara 32.04 episode. This is a live consultation for persons with intellectual and developmental disabilities during this coronavirus outbreak. मशवरा के इस 32वें एपिसोड में हम आप सभी का स्वागत करते हैं। कोरोना वायरस प्रकोप के दौरान मशवरा बौद्धिक और विकासात्मक दिव्यांगजनों के लिए एक लाइव परामर्श का माध्यम है। I welcome all our guest audience, and today we are going to talk about the disability advocacy. This is our good practice series, so we'll see how the disability advocacy has gone in a good practice, good way, and we'll also think about the needs and types of the advocacy. Advocacy services provide moral and legal assistance to individuals with disabilities, their families, and carers. Advocacy service can help person with intellectual and developmental disability to voice their concern and help to bringing about an improvement or resolution to address the issues of the concern. दिव्यांगजन और उनके परिवार और देखभाल करने वालों के लिए हिमायती सेवाएं जो एडवोकेसी सेवाएं हैं या वकालत की सेवाएं हैं वह नैतिक और कानूनी सहायता प्रदान करती है। हिमायती सेवाएं या वकालत की सेवाएं दिव्यांगजनों की अपनी चिंताओं को आवाज के रूप में दूसरे तक पहुंचाने में मदद कर सकती है और ये चिंता एक मुद्दा बनकर उसे दूर करने के लिए सुधार या संकल्प के रूप में लाने में मदद करती है। आज हम दिव्यांगजनों के लिए हिमायत या वकालत या एडवोकेसी सर्विस की आवश्यकता और इसके कितने प्रकार होते हैं, कैसे कैसे हमारे जो आज गुड प्रैक्टिसेस में हैं वो हम देखेंगे। और एडवोकेसी सर्विस कैन बी वेरी इंपॉर्टेंट वेयर द पर्सन विथ डिसेबिलिटी कैन रेज देयर वॉइस, दे रेज देयर कंसर्न एंड हेल्प ब्रिंगिंग अबाउट एन इम्प्रूवमेंट about their concern and everything. So हिमायती या वकालत सेवाएं किसी के लिए भी, चाहे वो बौद्धिक विकासात्मक दिव्यांगजन हो या और कोई भी हो, वो अपनी चिंताओं को आवाज दे सकते हैं, अपनी चिंता पूर्ण मुद्दे को दूर करने के लिए या सुधार करने के लिए उसके लिए संकल्प ले सकते हैं। This मशवरा live consultation is through Zoom and Facebook Live for persons with intellectual and developmental disabilities, their families, caregivers, professionals, volunteers, and all during this coronavirus outbreak. यह मशवरा परामर्श सेवा कोरोना वायरस प्रकोप के दौरान मशवरा लाइव के माध्यम से बौद्धिक और विकासात्मक दिव्यांगजनों के लिए, उनके परिवारजनों के लिए, उनके पेशेवरों के लिए हम लाइव हैं। मशवरा की हर श्रृंखला आप सभी के लिए है और आप सभी से मशवरा है। कृपया आप हमारे मशवरा में यूं ही बने रहें। I think I'm audible. Okay. So I'm not coming. Okay. Now I'll go in that way. This is our 32 episode, and we had started the 30th from 30th April. I would like to share you one good data here, and we have the more than 69,000 times Mashwara episodes have been viewed by or seen by the audience. And hold on, and we have one more good news that our another series of Man Bhavan, it is more than 37,000 views we have in Man Bhavan in all episode. So total we have reached more than 1 lakh people, 1 lakh viewers in around all the episodes of Man Bhavan and Mashwara. So we are celebrating 1 lakh viewers, 1 lakh our audience, we can say. Mashwara post programs are available. The recordings are available on our Facebook, YouTube, Instagram, social media, and most importantly in our website mashwara.live. Today we have disability advocates with us as the speaker, and they have advocated for themselves, another person, or a group of person with disability. They work through issues that have an adverse effect on the rights for an individual or group or and the society at wide level.
आज हमारे बीच दिव्यांगजनों के वकील हैं, वी कैन से द एडवोकेट्स हैं, दे आर डूइंग द एडवोकेसी, जो स्वयं के लिए या किसी अन्य व्यक्ति के लिए या दिव्यांगजनों के समूह के लिए वकालत करते हैं। ये सभी ऐसे लोग हैं, ये सभी उन मुद्दों के माध्यम से काम करते हैं जिससे कि हमारे जो दिव्यांगजन है उनको अधिकार मिले, उनको समाज व्यापी स्तर पर उसका प्रभाव पड़े। और मैं आज इस 32वें एपिसोड में हम हमारे सभी स्पीकर्स का स्वागत करते हैं। इन दिस episode of Mashwara 32, we are talking about the power of disability advocacy. Over the past century, that has radically shifted thinking to recognize the rights of all people with disability to live in the community with choices and equal to others. मशवरा के इस 32वें कड़ी में हम पिछले कुछ दशकों से में दिव्यांगजनों की वकालत के शक्ति के बारे में बात करेंगे कि क्या क्या बदलाव आया है, क्या क्या सशक्तिकरण हुआ है। आज हमारे वक्ता यह भी बताएंगे कि कैसे अपनी पसंद के साथ समुदाय में दिव्यांगजन के अधिकार को मान्यता मिली है, कैसे उनका मौलिक रूप में बदलाव हुआ है, इसके बारे में हम आज बात करेंगे, चर्चा करेंगे। मेरा जो मानना है कि दिव्यांगजन की जो वकालत है वो दिव्यांगजनों के मानव अधिकार को, जो ह्यूमन राइट्स है, उसको बढ़ावा देने के लिए है, उसे रक्षा करने के लिए है, उसे बचाव करने के लिए है। इसमें हम काम कर सकते हैं, बोल सकते हैं, लिख सकते हैं, अपनी आवाज हम उठा सकते हैं। I once again welcome and appreciate our special guest to join this Mashwara Live. This episode is bringing a very important topic, and this is my pleasure to welcome our expert. First, Sri Arman Ali ji, we welcome you. He is the Executive Director of National Center for Promotion of Employment for the Person with Disability. We welcome you, sir. And then we have Mr. Kapil Kumar Agarwal ji. He is a founder of Viklang Sahara Samiti. We welcome you, sir. And we have Mrs. Subarna Raj. She is the international para-athlete. We welcome you, ma'am. And this session will be presided by our president, Dr. Nimeshji Desai, sir. We welcome you, sir. And we welcome JC Gupta, sir, and other members and all the friends and everyone. Please welcome. And we have sign language interpretation by Mrs. Rakhi Ramola. मैं पुनः आप सभी का स्वागत करता हूं, इस मशवरा लाइव में शामिल होने के लिए आपका आभार व्यक्त करता हूं। हमारे विशेषज्ञ जो हैं, हमारे जो वक्ता हैं आज, अरमान अली जी, कपिल कुमार अग्रवाल जी और सुवर्णा राज जी, आप सभी का स्वागत है। देसाई सर का भी स्वागत है। एंड बिल्डिंग द कॉन्फिडेंस, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड देसाई सर कई बार हम लोगों को बता चुके हैं कि कॉन्फिडेंस के बारे में या पर्सनालिटी डेवलपमेंट के बारे में या कोपिंग स्किल्स के बारे में वी हैव टू टॉक एंड वी हैव टू do some more empowermental episode, and we should do more anything. So the building the confidence is in the self advocacies. We'll go for the how the self advocacy works and telling others about their decision, getting help with the other advocacy and support within the people with disability groups or family community level support system, and self advocacy for supported decision making is very essential. स्वयं के लिए वकालत करना, आप अपने आत्मविश्वास का निर्माण करना, दूसरे से अपने निर्णय के बारे में बातचीत करना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वकालत के लिए सहायता प्राप्त करना, या दिव्यांग लोगों से के समूह से या फिर परिवारजनों से, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि हमें इसका सहयोग, समर्थन और एक समर्पित निर्णय लेने में खुद की वकालत करना बहुत ही आवश्यक है। We'll go to our first speaker, Madam Suvarna Raj ji. And this speaker will tell about the individual and self perspective of the advocacy. Let us talk to the self advocate, and she has the right to speak or act on their own behalf or behalf of the people, or we have seen the so many actions she has done. पिछले कुछ दिनों पहले हम लोगों ने देखा था कि एक बहुत बड़ी आवाज उठी थी रेलवे में। इन्होंने जो है एक सफर किया था और बतला दिया था कि अगर आप हमें हमारी राइट्स को, अगर आप हमें हमारी बात को नहीं सुनेंगे तो कैसे हो सकता है, क्या हो सकता है। तो मुझे पता है और हम सभी बहुत लोगों को पता है कि रेलवे मिनिस्टर तक, मंत्रालय तक और प्रधानमंत्री तक जो है कि ये आवाज पहुंची थी और उन्होंने फिर बहुत बड़ा बदलाव किया था। आइए हम एक ऐसे वकील से मिलते हैं, मोहतरमा जो है वो दिव्यांगजनों की ओर से बोले या फिर अपने अधिकार के लिए लड़े, चाहे वह मुद्दा व्यक्तिगत हो या फिर लोक नीति से संबंधित हो। इनके जीवन का ये उद्देश्य है कि सभी के लिए समाज में बेहतर जीवन जीने के लिए मदद करना। सो वी वेलकम यू सुवर्णा जी,
एंड वी वुड लाइक टू नो कि आपने जो ये सारा काम किया है, समाज में बेहतर जीवन जीने के लिए लोगों को जो मदद की है, वो कैसे की है, क्या आपका इंस्पिरेशन है, व्हाट वेर योर लर्निंग फेज, आपने क्या क्या ये चीज सीखा है कि हम जो है स्वयं के लिए वकालत करेंगे ही करेंगे, उसका इम्पैक्ट जो है पूरे इंडिया पे पड़ेगा, पूरे कंट्री पे पड़ेगा। सो मैडम सुवर्णा राज जी। थैंक यू आलोक जी एंड थैंक यू निमेश सर एंड सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। कहना है मैं ऑडिबल हूँ? या ओके। सो मुझे याद है आज भी मैंने अपना जो फर्स्ट लड़ाई लड़ी थी ना, मैं हॉस्टल में रहती थी और मैं बहुत बड़ी भी नहीं थी, मतलब 8 या 9 में थी। तो हमें खाने में ना बड़ी अजीब चीजें मिलती थी, मतलब दाल में कीड़े पड़े हो, चावल में भी कीड़े हो। तो हम लोग कहते थे, मतलब पहली लड़ाई मेरी वहीं से स्टार्ट हो गई थी कि हमें खाने में, हम हॉस्टल में रहते हैं, फीस पे करते हैं, सब कुछ करते हैं। तो वहां पे फिर हमने एक बार वो खाना लेके किसी को दिखा भी दिया था, जो सोशल वेलफेयर से आते हैं, उनको दिखाया था कि हमें ऐसे खाना खिलाया जाता है और आप हमको पैसे देते हैं हमको खाना खिलाने के लिए। तो उस दिन मैं बहुत बदनाम भी हो गई थी, सच मानो तो, कि ये तो झांसी की रानी है, अगर इसको कुछ भी गलत दे दो तो ये तो डायरेक्ट मंत्री तक पहुंचा देती है बात। तो तब मुझे इतना नहीं पता था कि हाँ इसे एडवोकेसी कहते हैं, बट हाँ ये जरूर पता था कि अपने अधिकारों के लिए लड़ना हमारा काम है। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि अगर हमें अपनी चीजों को पता होना, मतलब कि जैसे हमें खाना अच्छा मिलना चाहिए, या फिर हमें हेल्थ अच्छी मिलनी, हेल्थ के रिलेटेड इश्यूज जो है वो हमारे पूरे सॉल्व होने चाहिए, फैसिलिटीज है वो कुछ भी, चाहे एजुकेशन ही क्यों ना हो। उसके बाद मैं जब हॉस्टल में रही तो मैंने बहुत सारी चीजें सीखी भी है। ऐसा नहीं कि वहाँ पे हर चीज माइनस भी रही, थोड़ा खाना अच्छा नहीं पता, लेकिन हाँ बाकी बहुत कुछ बहुत अच्छा भी सीखने को मिला है। मैं तब से स्पोर्ट्स में भी थी। तो स्पोर्ट्स के बाद मुझे याद है कि जब मैं हॉस्टल से बाहर निकली तो बाहर का जीवन मेरे लिए बड़ा मुश्किल हो गया था, क्योंकि 10 साल आप एक कमरे के अंदर बंद रहते हो और एकदम से आप बाहर निकलते हो तो एक सोसाइटी के साथ घुल मिलना और बातें करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो मेरे कॉलेज में एडमिशन हुआ तो कॉलेज में बिल्कुल एक्सेसिबिलिटी नहीं थी। वो कॉलेजेस में पूरे मतलब क्लासरूम्स जो थे वो फर्स्ट लेवल, सेकंड लेवल, थर्ड लेवल ऐसा था, और फिर कॉलेज वाले कहते थे कि पढ़ना है तो आपको ऐसे ही पढ़ना पड़ेगा, अदरवाइज हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। तो 2 दिन 3 दिन तो मैंने बहुत रिक्वेस्ट करी, उसके बाद मैंने कहा मुझे पढ़ना भी है। उन्होंने मुझे ऑप्शन भी दिया था कि आप घर से पढ़ सकते हो, मैंने कहा नो, मैं हॉस्टल के अंदर रह के बहुत पढ़ चुकी हूँ 4 दीवारी के अंदर, अब मुझे बाहर निकल के पढ़ना है। तो मैंने कहा पढ़ना तो है और मुझे इस कॉलेज में ही पढ़ना है। मुझे बहुत लड़ाई लड़नी पड़ी। 1 महीने के अंदर मैंने अपने सारे क्लासरूम्स नीचे लाए और उनको, प्रिंसिपल को मेरी बात माननी पड़ी। मैंने उनको कहा था एजुकेशन मेरा राइट है, आपको मेरे लिए क्लासेस नीचे लानी पड़ेगी, टीचर्स को ही नीचे आना पड़ेगा, ये तो नहीं है कि सबको। मैंने कहा आप उतनी देर के लिए सारे क्लासेस। तो ऐसे करके मैंने अपनी सारी पढ़ाई, जितने भी कॉलेजेस में मैं गई, मैंने 2 मास्टर्स और 2 बैचलर्स डिग्रीज लिए, वो सारी की सारी मैंने पढ़ाई इसी तरह करी है, क्योंकि तब ना एक्सेसिबिलिटी के लिए कोई लॉ था। अभी अभी ये सारी चीजें बहुत आने लगी, पहले तो ऐसा कुछ भी नहीं था। इवन सच बताओ तो तभी मुझे ये भी नहीं पता था कि जिस चीज के लिए मैं लड़ रही हूँ वो एक्सेसिबिलिटी है। अब मुझे पता है कि यस वो चीज एक्सेसिबिलिटी के लिए थी और मैंने उसके लिए लड़के, और यकीन मानिए अब उन सब कॉलेजेस में रैंक्स है। और मैं अभी भी वहां जाती हूँ तो वो लोग बोलते हैं कि यस सुवर्णा, अगर आप शायद हमें नहीं बोलते तो हमें शायद ये चीज पता नहीं होती। और हर साल वो लोग एक एडमिशन जरूर लेते हैं, अदरवाइज मेरे बाद उन्होंने सोचा था कि आगे से शायद हम ऐसा एडमिशन ले ही ना तो अच्छा होगा। और जब मैंने बीएड किया तो बीएड में मुझे पहले ही दिन बड़ा अजीब सा महसूस हुआ। प्रिंसिपल ने बोला ठीक है आप साड़ी नहीं पहनोगे, आपको कल्चरल एक्टिविटीज में पार्ट लेने के लिए कोई फोर्स नहीं किएगा, ये वो। तो मैं एकदम से अचंभित हो गई। मैंने कहा सर आप ये मुझे क्यों कर रहे हो ये सब। मैंने कहा मैंने कभी बोला है आपको कि मैं साड़ी नहीं पहन सकती, या मैंने बोला है कि मैं कल्चरल एक्टिविटीज में पार्ट नहीं ले सकती। तो जैसे कि 16 साल से हमारा कॉलेज चल रहा है, हर साल एक एडमिशन हमें लेना होता है बीएड में, और हर साल वो लड़की आके हमें ये बोलती है कि ना मैं साड़ी पहनूंगी ना ही मैं किसी कल्चरल एक्टिविटीज में। और यकीन मानिए मैं उस कॉलेज की उस साल की बेस्ट स्टूडेंट रही और हर चीज में मैंने पार्टिसिपेट भी किया। और अपनी जो बीएड जिस लेवल से करना चाहिए, जैसे उनको लगता था कि एक शिक्षिका ऐसे हो सकती थी,
तो वो सारी चीजें की। उसके बाद जो ऐसे बढ़ता गया मामला, रेलवे वाला सफर आपको आलोक जी ने बता ही दिया कि यस, उस दिन मुझे वो रात बड़ी मुश्किल से कटी थी मेरी रेलवे में, लेकिन उसके बाद जो हुआ वो मजेदार भी था, और कहीं ना कहीं पूरे इंडिया के विकलांग जनों को एक सुविधा मिल गई है कि आज हाँ, हम अब थर्ड एसी में भी सफर कर सकते हैं विद कंसेशन, और कहीं ना कहीं बहुत सारी चीजें बदल रही है, और वो लोग अभी कहीं ना कहीं एक्सेसिबिलिटी पे भी काम कर रहे हैं। बस काम थोड़ा स्लो है, इस पे अभी भी थोड़ा सा डर, मतलब बुरा लगता है कि यस, कि अगर दूसरी जगह हो सकता है तो हमारे इंडिया में इस चीज को और क्यों नहीं बढ़ा सकते। मैं अभी लंदन गई थी लास्ट ईयर, लंदन में भी पुरानी रेलवे है, लेकिन उन्होंने मैनुअल रैंप लगा रखा है। अगर कोई भी व्हीलचेयर यूजर या पर्सन विद डिसेबिलिटीज में दिखता है तो वो सडनली आके मैनुअल रैंप लगा के उस पे हमें चढ़ाते हैं रेलवे में, और हमें पूछा जाता है कि कौन से स्टेशन पे आपको उतरना है। तो अगर लंदन की पुरानी से पुरानी रेलवे में ये हो सकता है तो इंडिया की रेलवेज में क्यों नहीं हो सकता। नॉट ओनली रेलवेज, इन एवरीवेयर। आज भी मैं एटीएम एक्सेस नहीं कर पाती, आज भी मैं बैंक सुविधा, मेरा बैंक जो कैनरा बैंक आईटीओ पे है, मैं वो एक्सेस नहीं कर पाती। आज भी कॉलेजेस या कई सारे स्कूल ऐसे जो एक्सेसिबल नहीं है। तो कहीं ना कहीं हमें लगता है कि आवाज हमें उठानी चाहिए। जैसे मैंने कहा ना कि मैंने उस वक्त एक्सेसिबिलिटी के बारे में पता ना होने के बावजूद भी आवाज उठाई, तो शायद हर स्टूडेंट को या हर व्यक्ति को, हर विकलांग व्यक्ति को अपने बस पता होना चाहिए कि हमारा ये राइट है और हमें इसके लिए लड़ना है। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। मुझे तो लगता है कि आपकी जो कहानी है, आपकी जो स्टोरी है, बहुत ही इंस्पिरेशनल है। और आपने एक बहुत अच्छी बात कही कि हमें पता है कि नहीं है, उस टर्म के बारे में हमें नहीं पूछना कि एडवोकेसी क्या है, अधिकार क्या है। अगर आपका चॉइस है, अगर आपने पसंद बना लिया है, अगर आपने उस चीज को चाहिए, अगर आपको वो करने की इच्छा है, तो जरूर बोलना चाहिए। वो अंदर से हमारी वो आवाज आनी चाहिए जो हर व्यक्ति को एक बहुत बड़ा एक हथियार देता है कि हम अपनी आवाज को लोगों तक पहुंचा पाए। मैं पुनः आप सभी का स्वागत करता हूं। आपले स्वागत आहे बड़कम, और इस मशवरा के 32वें एपिसोड में हम आप सभी का स्वागत करते हैं। और आपके अगर कोई भी सुझाव और सवाल है तो आप प्लीज मैसेज बॉक्स में डालें। विल गो टू द कपिल अग्रवाल जी। वी कैन सी द कम्युनिटी लेवल में, एक समुदाय लेवल में एक कैसे एडवोकेसी की जाती है। कपिल जी हैज बीन डूइंग ग्रुप एडवोकेसी एंड involves advocating for a group of people with disabilities, such as a group of people who are living in the slum areas or rural areas or any areas. He has developed the citizen advocacy model, which I have seen his work very closely, कि इन्होंने एक citizen advocacy model कैसे develop किया है, that where the community volunteers are involving, community peoples are involving, government officers are involving and advocating for the people with disabilities. सो कपिल जी समूह के लिए वकालत करते हैं। इसमें दिव्यांगजन के समूह का वकालत करना शामिल है, और चाहे वह स्लम बस्ती में लोग हो या फिर कोई ग्रामीण इलाका में हो या कहीं भी हो, वह इन्होंने एक सिटीजन पद्धति का वकालत पद्धति का एक विकसित किया है, जिसको कि हम देखें कि वो समुदाय में रह के समुदाय के लोगों के साथ कैसे ये वकालत करते हैं। सो कपिल जी आपका स्वागत है। सो आई विल आस्क यू how you communicate with the community at large, including the government office, to fulfill the requirements of person with disability and their rights. Even you have fighted for the many times for the disability certificate. आप दिव्यांगजनों की सहायता और आवश्यकता को पूरा करने के लिए सरकारी कार्यालय के सहित बड़े पैमाने पे समुदाय के हर तबके के लोगों से संवाद स्थापित करते हैं और उनके बारे में बताते हैं और उनको अधिकार दिलाते हैं। यहाँ तक कि आपने कई बार बहुत ऐसी पहल की है जिसमें कि दिव्यांगता सर्टिफिकेट जो है, प्रमाण पत्र जो है, वह भी लोगों को मिला है, बड़े आसानी से मिला है। सो कपिल जी प्लीज। सर नमस्कार। नमस्कार। मैं आपको अपने बारे में बताने से पहले कुछ अपने व्यक्तिगत रूप के बारे में बताना चाहूँगा। जब मैं 7 साल का था तो मुझे पता चला कि मुझे पोलियो है, और मैंने अपना प्रमाण पत्र बनाने के लिए काफ़ी हॉस्पिटलों के धक्के, हॉस्पिटल गवर्नमेंट में खाए, वहाँ गया, घूमा। पता चला कि विकलांगता सर्टिफिकेट जो एक विकलांग व्यक्ति की पहचान है, दिव्यांग व्यक्ति की पहचान ही एक विकलांग सर्टिफिकेट है, वो बनाने में लोगों को बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। बहुत सारी क्या, बहुत ज़्यादा दिक्कतें आती हैं। आज के समय में तो बहुत सारे हॉस्पिटल्स दिल्ली गवर्नमेंट ने हमें दिए हैं,
कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट के भी हैं, लेकिन जो दिव्यांग सर्टिफिकेट जब प्राप्त करना होता है उसमें दिव्यांग व्यक्ति को काफी दिक्कतों का सामना इसको हैंडल कर रहा है। आप सुन पा रहे हैं क्या? पा रहे हैं जी। दूसरा, जी। जब वो सर्टिफिकेट प्राप्त हुआ तो तब से ही मैंने 1994 से अपनी जिज्ञासा इस बात पे रखी कि जब मुझे इतनी दिक्कतें दिल्ली में रहते हुए हुई है सर्टिफिकेट को बनाने को लेकर, तो मैं क्यों ना उन लोगों के लिए मदद करूं, उन लोगों के लिए क्यों ना आगे आऊं जो लोग मेरे जैसे हैं, जो लोग भाई बहन मेरे जैसे इस सर्टिफिकेट के साथ अछूते हैं। क्योंकि आप सबको पता है कि अगर विकलांग सर्टिफिकेट होगा तभी भारत सरकार या केंद्र सरकार, भारत सरकार या दिल्ली सरकार या दिल्ली में नगर निगम है, उसकी कोई भी सुविधा जो दिव्यांग व्यक्ति को सरकार के द्वारा मिल सकती है वो तभी उसे मिलेगी। उसके बाद जब सर्टिफिकेट बना तो उसके बाद मैंने विभिन्न प्रकार की समस्याओं को जाना उस सर्टिफिकेट के अलावा कि उस और दिक्कतें क्या क्या दिव्यांग व्यक्ति के साथ हो सकती हैं। उसके अनुसार उन सरकारी दफ्तरों तक उन चीजों को पहुंचाया ताकि उन समस्याओं का निवारण हो सके, चाहे पत्र लिख के हो, चाहे व्यक्तिगत रूप से मिलना हो। साथ ही साथ 94 से एक हमने अपना एक हेल्पलाइन चलाया जो कि सुबह 9 बजे से 5 बजे तक कार्यरत रहता है। उसमें अनेकों लोगों के फोन कॉल्स आते हैं, वो अपनी समस्याओं का निवारण के लिए जानकारी लेते हैं। साथ ही उन लोगों का जब हम हेल्पलाइन के थ्रू उनकी मदद कर देते हैं, लेकिन कुछ लोग जब हमारे ऑफिस तक आते हैं, हमारे कार्यालय तक आते हैं, हमने जब से 1994 से विकलांग मार्गदर्शन। कपिल जी, आपका कैमरा ऑफ है, आप कैमरा ऑन करेंगे? सर मैंने ऑन किया हुआ है, लाइव नहीं हो रहा, पता नहीं वजह। अच्छा चलिए, कोई नहीं, ठीक है। मैंने काफी कोशिश कर ली, हो नहीं रहा। मैं भी इधर से कोशिश कर रहा था। ठीक, नो इशू। तो उसके बाद पंजीकरण, क्योंकि उसके बाद हमने एक अपना फॉर्मेट बनाया हुआ, उसके बाद उनको पंजीकरण करते थे कि जो फैसिलिटी गवर्नमेंट की उनको मिली हुई है या जो फैसिलिटी गवर्नमेंट के साथ उनको चाहिए, उन फैसिलिटी के साथ उनको जोड़ना। और अन्य राज्यों, जैसे हम दिल्ली की बात करते हैं, अन्य राज्यों में कुछ फैसिलिटी अलग है, दिल्ली में फैसिलिटी अलग है। जैसे दिल्ली में हम सबसे ज्यादा कहें कि आज दिल्ली गवर्नमेंट पेंशन बहुत ज्यादा देती है, वहीं पे हरियाणा यूपी गवर्नमेंट पेंशन कम देती है। हरियाणा गवर्नमेंट का सर्टिफिकेट बनाने का और डिसेबिलिटी का जो मापदंड है वो बहुत अलग है, दिल्ली गवर्नमेंट का अलग है। तो उन राज्यों में क्या अलग विकलांगता के लिए प्रोविजन है और इन राज्यों में, हमारे राज्य में, हमारी दिल्ली में क्या है, उन दोनों को मिक्सअप करके उनको हमारे जो उस समय के मुख्यमंत्री हुआ करते थे या उस समय के हमारे मेयर हुआ करते थे, उस समय उन चीजों को हम सामने रखते थे और उन लोगों ने भी काफी साथ दिया इन चीजों को बनाने के लिए। जैसे आज उस समय जब हमने काम स्टार्ट किया तो 4 हॉस्पिटलों में सर्टिफिकेट बनता था, आज लगभग 22 हॉस्पिटलों में सर्टिफिकेट बनता है। साथ ही आज एक ऐसा सर्कुलर पिछले दिनों दिल्ली गवर्नमेंट ने निकाला है कि आप उन अस्पतालों के, वो सर्कुलर में शेयर कर दूंगा, उन अस्पतालों में आप किसी भी प्रकार की विकलांगता का सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं, किसी भी एरिया का बना सकते हैं। कोई भी सर्टिफिकेट बनाने के लिए कोई भी अस्पताल किसी भी दिव्यांग व्यक्ति को ना एरिया पे बाधित रखेगा ना विकलांगता पे बाधित रखेगा। साथ ही साथ हम लोग लगभग जितने भी दिव्यांग लोगों के साथ जो भी दिक्कतें होती हैं उनको कमिश्नर ऑफ डिसेबिलिटी सेंट्रल इंडिया और डिसेबिलिटी कमिश्नर गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली तक उन चीजों को पहुंचाने का कोशिश करते हैं, चाहे वो उनके ड्राइविंग लाइसेंस की बात हो, उनके कंसेशन की बात हो, उनके सर्टिफिकेट बनाने की बात हो या उनके पेंशन की बात है। साथ ही साथ जिन लोगों की पेंशनें नहीं लगी होती या पेंशनों में दिक्कतें आती हैं, क्योंकि बहुत सारी एनजीओ मैंने देखा कि बहुत सारे अलग अलग काम करते हैं, डिफरेंट काम करते हैं। मेरा लॉजिक हमेशा डिफरेंट रहा है कि जो बेसिक जरूरत है, मैं अपने लेवल पे बता रहा हूँ, जैसे विकलांग व्यक्ति को, दिव्यांग व्यक्ति को प्रमाण पत्र की जरूरत है तो उसको प्रमाण पत्र दिलाना, उसको कंसेशन की जरूरत है तो कंसेशन सर्टिफिकेट दिलाना, उसको बस पास की जरूरत है तो बस पास दिलाना, अगर उसको पेंशन की जरूरत है तो उसको पेंशन दिलाना। और भी जो सरकारी फार्म जो भी जहाँ पे नहीं मिल पाते, चाहे वो किसी स्वयंसेवी संस्था का हो, चाहे वो किसी सरकारी दफ्तर का हो, चाहे वो किसी भी विभाग का सर्टिफिकेट, विभाग का प्रमाण पत्र लेने का या विभाग से कोई भी फैसिलिटी लेने का कोई भी आवेदन पत्र, वो हमने सब अपनी वेबसाइट पे डाले हुए। लोग हमसे व्हाट्सएप पे, लोग हमसे वेबसाइट के थ्रू, लोग हमसे व्यक्तिगत रूप से वो फॉर्म को प्राप्त करते हैं और सरकारी सुविधाएं ले पाते हैं। साथ ही सबसे बड़ा जो अचीवमेंट सरकार के साथ हम लोगों ने किया कि दिव्यांग व्यक्ति को बहुत दिक्कत होती थी 50,000 रुपए तक का लोन लेने के लिए। 50,000 का लोन के लिए उसको काफी सरकार के साथ, समाज कल्याण विभाग, सॉरी एसटीसी विभाग के साथ काफी जद्दोजहद करनी होती थी। उसको बहुत सिंपल बना दिया गया सर। अगर आपके पास आपका खुद का घर है या आपके पिताजी का घर है, आपके पास कुछ भी छोटा मोटा आपको काम करना है, चाहे आपको दूध बेचना है, चाहे आपको मूंगफली लगानी है, चाहे आपको चाय बेचनी है, कोई भी काम करना हो, 50,000 रुपए तक का लोन सरकार विद इन 1 वीक में आपको दे सकती है। बस शर्त है कि आप उनकी 2-3 फॉर्मेलिटी, आपका इलेक्शन कार्ड, आपका आधार कार्ड, आपका बिजली का बिल, ये 4-5 चीजें होनी चाहिए। इसमें नो गारंटी और नो कोई डॉक्यूमेंट वहां पे रखा जाएगा, सिर्फ आपका एक विटनेस लिया जाएगा, उसकी भी गारंटी नहीं होगी। ये बहुत
दिल्ली सरकार के साथ पहल कराने का बहुत बड़ा किया गया है। साथ ही साथ जो हमारा RPW एक्ट था, उसमें जितने हम लोगों ने आपके साथ भी मिलकर और भी लोगों के साथ मिलकर जो जो सजेशन हमने देने चाहे थे, कुछ कुछ उसमें फुलफिल हुए। बस मैं सरकार से आपके माध्यम से, क्योंकि कुछ लोग इसमें ऐसे हैं जो सरकार तक बात पहुंचा सकते हैं, हम तो पहुंचा ही रहे, कि आप सरकारी माध्यम से एक ऐसा डेवलपमेंट सेंटर बनाएं, चाहे नेशनल लेवल पे बनाएं, चाहे स्टेट लेवल पे बनाएं, विकलांग मार्गदर्शन केंद्र, या उसको हम कह सकते हैं दिव्यांग मार्गदर्शन केंद्र, ताकि कोई भी दिव्यांग व्यक्ति, आज सरकार से पेंशन आती है तो लोग 50 फोन करते हैं, किसी को सर्टिफिकेट का कोई फॉर्म चाहिए होता है, किसी को कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है, तो इस तरह की कोई हेल्पलाइन सरकार की तरफ से एक भी हेल्पलाइन नहीं है जहाँ पे इस तरह के, जैसे अभी पिछले दिनों कोविड में भारत सरकार ने अपने 4 हेल्पलाइन नंबर इशू करे, उनमें उन समस्याओं का निवारण हो रहा है। लेकिन और भी बहुत सारी जरूरतें हैं जो दिव्यांग लोगों के साथ हैं। आज भी बहुत सारे, जैसे हमने कोविड में राशन का प्रोवाइड कराया, लेकिन आज भी ऐसे बहुत सारे दिव्यांग लोग हैं जो सिर्फ पेंशन पे आश्रित हैं। पेंशन के अलावा उनको स्वरोजगार में ही मदद होनी चाहिए, उनको रोजगार में ही मदद होनी चाहिए। ये सरकार तक बात पहुंचाने का आप कष्ट करें। धन्यवाद। ग्रेट। कपिल जी, मैं आपके बारे में तो क्या बताऊं, आपने तो बहुत सारे चीज छोड़ दिए। आप जो कम्युनिटी में, मैं पिछले दिन आपका एक मीडिया वो देख रहा था, पोस्ट देख रहा था, आई हैव सीन सो मेनी, बहुत बुजुर्ग महिलाएं जो थी वो आपको आशीर्वाद दे रही थी। तो क्यों आशीर्वाद दे रही थी? वो हमारा रिक्रिएशन सेंटर है। हम बुजुर्गों को अपना एक रिक्रिएशन सेंटर, मनोज, जो आजकल बंद है कोरोना की वजह से, और उनकी पूरी फैमिलीज, मेरे यहाँ मंगोलपुरी, सुल्तानपुरी में जो रिक्रिएशन वाले जो महिलाएं हैं, सिर्फ महिलाएं सर, हमसे वो लगभग 101 महिलाएं हैं, वो जुड़ी हुई है, और उनका पूरा फैमिली सपोर्ट होता है। वीक में उनकी कोई ना कोई एक्टिविटी करा देते हैं 15 दिन में, और साल में हम उनको तीर्थ स्थान पे 2 बार घुमा के लाते हैं, चाहे वो हरिद्वार हो, चाहे मथुरा हो, और लगभग 2-3 बसें हमारी हो जाती हैं। तो उनको बड़ा सुकून मिलता है, क्योंकि आजकल जो ये माहौल चल रहा है उसमें कुछ ओल्ड एज में डिसेबल्ड महिलाएं भी हैं 12-13, वो महिलाएं भी आती हैं, और उनको होली, दिवाली, क्योंकि आजकल बच्चे जो होते हैं, ओल्ड जो पेरेंट्स होते हैं, ओल्ड एज पेरेंट्स होते हैं, उनकी केयर ठीक से नहीं कर पाते, तो वो आते हैं यहाँ पे, और आते हैं वहाँ पे और अपना मनोरंजन भी करते हैं, भजन गाते हैं, गीत गाते हैं, अपना त्योहार बनाते हैं, और हमें अपना आशीर्वाद भी देते हैं, और साथ घूम के भी आते हैं। ग्रेट। सो आपने देखा कि जो कपिल जी का काम है वो एक समुदाय के लेवल पे, एक कम्युनिटी के लेवल पे वो कितना ही बदलाव ला सकता है। धन्यवाद कपिल जी, आपने बहुत ही अच्छी बातें बताई। We'll go to the Mr. Arman Ali ji. He is the director of National Center for Promotion of Employment of Person with Disability, and we can see this institution as well as the person himself has a very good stake in the national perspective for developing the law, developing the policies. So Arman Ali is doing the systematic advocacy. मैं आपके बारे में जो जितना देखा, जितना पढ़ा, मैंने देखा कि ये this is called the systematic advocacy. He is working for the long-term social change to ensure the collective rights and interest of person with disabilities are served through legislations, through policies and practices. अरमान अली जी सिस्टमेटिक वकालत करते हैं, वो लंबे समय से सामाजिक बदलाव के लिए काम कर रहे हैं, ताकि अच्छे तरह से दिव्यांगजनों के लिए जो उनका अधिकार है, जो उनके हित है, उसके हित पर कानून बनना चाहिए, नीति निश्चय होनी चाहिए और उसको सफलता मिल पाए। सो अरमान अली जी, आप हमें ये बताइए कि ये सारी जो लॉबीज करते हैं, जो भी आपने व्हाट एवर द चेंजेस यू आर मेकिंग, सो अभी तक क्या क्या चेंजेस आपने बदलाव लाए हैं और क्या क्या चैलेंजेस आपने फेस किए, उन चैलेंजेस को कैसे आपने वो किया? सो अरमान अली जी प्लीज। शुक्रिया आलोक जी। थैंक यू। जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं सभी को। और मैं NCPEDP नेशनल सेंटर फॉर प्रमोशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट फॉर डिसेबल्ड पीपल का एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हूँ, और NCPEDP 1996 से विकलांग लोगों के अधिकार के लिए काम कर रही है, और किसी एक विकलांगता नहीं, NCPEDP का ये मोटो रहा है कि एक क्रॉस डिसेबिलिटी राइट्स मूवमेंट हो। अगर हिस्टोरिकली आप देखेंगे तो पहले ब्लाइंड लोगों का अलग एक मूवमेंट हुआ करता था, डेफ लोगों का अलग एक मूवमेंट हुआ करता था, अभी भी है कई चीजों में कई मुद्दे उनके हैं जो
अब देखिए, जैसे कि अभी ऑनलाइन एग्जामिनेशन की बात कीजिए तो ब्लाइंड लोगों ने कल ही एक सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। तो एनसीपीडीपी मुझसे पहले मेरे प्रीडिसेसर जो थे श्री जावेद आबिदी साहब, मरहूम अभी रहे नहीं वो, उनकी पहल थी और फोकस यही था कि कैसे सबको इकट्ठे जोड़ के, क्योंकि जरूरत है सब शिक्षा, रोजगार, आने जाने की सुविधा और समान अधिकार जो भी संविधान से हमको दिया गया है एक भारतीय नागरिक होने के कारण, उस पे फोकस था। और एनसीपीडीपी के 5 पिलर हैं, जैसे कि एम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन, एक्सेसिबिलिटी, लेजिस्लेशन, यूथ। लेजिस्लेशन के साथ कम्युनिकेशन को भी जोड़ लीजिए, तो हम ये 5 मुद्दों पे हम बहुत फोकस तरीके से काम करते हैं। और एनसीपीडीपी पिछले 2 दशक में 2 कानून लाने में, और सिर्फ एनसीपीडीपी ही नहीं, एनसीपीडीपी के साथ नेशनल डिसेबिलिटी नेटवर्क है, नेशनल कमिटी ऑफ राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज है, जिनमें कि सुभर्णा भी एक मेंबर है, एनडीएन का मेंबर कपिल भी एक मेंबर है। और एक अकेले एनसीपीडीपी से ये मुमकिन नहीं था, या अकेले किसी व्यक्ति से भी ये मुमकिन नहीं था। तो एक आई थिंक एक पहल जो पूरी सेक्टर है, जो विकलांग लोग हैं या विकलांग लोगों के साथ जो अधिकार के लिए काम कर रहे हैं, उनको जोड़ के एक मुहिम चलाना अधिकार के लिए, यही काम किया है एनसीपीडीपी ने। और इस काम को करने के लिए पॉलिसी बेस्ड हमारा काम है, और हम पॉलिसी कोई भी ऑनगोइंग पॉलिसी होता है, जैसे कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी बहुत नई है, इसका उदाहरण दे सकता हूँ। पहले जब पॉलिसी आई थी, पहले ड्राफ्ट आया था, उसमें कुछ नहीं था, और फिर उस ड्राफ्ट के बाद मैं जाके जावेदकर जी से मिला था, फिर पूरे सेक्टर की इकट्ठा करके हमने के फीडबैक दिया, फिर भी उसमें नहीं आया। फिर थावरचंद गहलोत जी से मिला, पीएमओ में जाके लोगों से मिले, तब जाके एक बार, और फिर जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के जो चेयरमैन है मोहनदास पाई, उनसे जाके मिलके उनको जब दिया गया, तब जाके अब एनईपी में आप जो भी देख रहे हैं विकलांगता को लेके जो भी प्रावधान लाए गए हैं, इस एडवोकेसी के बाद हुई। मीडिया को इन्वॉल्व करना, और सबसे बड़ी बात है सेक्टर को साथ में लाना। अगर एक अकेले एनसीपीडीपी बोले, एक अगर कपिल अग्रवाल बोले, एक अगर सुभर्णा बोले, तो इसका उतना प्रभाव नहीं पड़ता जितना कहे कि हमारे साथ 150-200 संगठन जुड़े हुए हैं, या तो उस तरीके की बात होती है। तो आई थिंक इसका एडवोकेसी का ज्यादा इम्पैक्ट होता है। और आपका सवाल काफी लंबा था, अगर मैं कुछ छोड़ रहा हूँ बीच में तो अगर आप एक बार दोबारा बोल देते। नहीं, सवाल तो आपने सारे सवाल का जवाब दिया है कि हाउ दिस सिस्टम कैन बी डन। जो हम एक सिस्टमेटिक एडवोकेसी के बारे में बात करते हैं कि हमें हर दूसरे लोगों का भी सहयोग लेना, हर दूसरे ऑर्गेनाइजेशन का भी सहयोग लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। अकेले हम काम नहीं कर सकते हैं, अकेले काम कर सकते हैं तो उसका इम्पैक्ट उतना ज्यादा नहीं हो सकता है। सो आई विल गो डायरेक्टली टू आवर देसाई सर टू से समथिंग। या नमस्कार आलोक, पहले नमस्कार सर। मनोविकास परिवार को बहुत बधाई हो 1 लाख व्यूअरशिप के बारे में। थैंक यू सर। तीनों हमारे साथी जो है सुवर्णा और कपिल और अरमान अली जी, इन्होंने बहुत अच्छी गहन बातें बताई हैं। मैं कोशिश ये करूंगा कि इनसे कुछ निचोड़ लेके इन तीनों साथियों से वार्तालाप हो सके, बाकी साथियों से वार्तालाप हो सके। सुवर्णा, मुझे सबसे पहले विचार यह आया जब आप कह रही थी, मुझे याद आया कि जब मोहनदास करमचंद गांधी ने साउथ अफ्रीका में उस ट्रेन में जब ऑब्जेक्ट किया था कि मुझे फर्स्ट क्लास में ट्रैवल करना है, मेरे पास टिकट है, तो उनको भी पता नहीं था कि वो एडवोकेसी या एक्टिविज्म कर रहे हैं। तो आप जैसे आलोक ने बताया, हमें कॉन्शियस लेवल पे एहसास ना हो, ये आम होता है। जो अनजाने में दिल से, आत्मा से निकली हुई एक्शंस होती हैं, वो एक्चुअली बहुत फार रीचिंग असर कर जाती है। आपके कहने से हॉस्टल वाले से मुझे याद आया, मैं सैनिक स्कूल में पढ़ा हुआ हूँ, 50 से ऊपर वर्ष हो गए। एक मौके पे, आप सब मानेंगे नहीं, सैनिक स्कूल में हम स्ट्राइक कर चुके हैं।
जैसे आपने कहा खाने के बारे में, और रात के 10 बजे प्रिंसिपल के बंगलों तक स्ट्राइक करके डिनर ना करके पहुंचे हुए थे। तो कुछ हद तक मुझे लगता है सुवर्ण और बाकी साथियों ने जो बात बताई, अगर अपने हक के लिए और खासकर समानता के हक के लिए बोलने की इच्छा है और काबिलियत है और हिम्मत है, तो एक्टिविज्म, एडवोकेसी, हिमायती एक्टिविटीज वहां से शुरू हो जाती हैं। छोटा क्षेत्र हो, बड़ा हो, और वो बहुत अच्छी बात है। मैंने करीब 40 साल पहले मेडिसिन और साइकेट्री करने के बाद, मैं इसको पता नहीं तय नहीं कर पाया हूँ अच्छा किया है बुरा किया, इस फितरत के साथ मैंने तय किया कि मैं सिस्टम के अंदर रह के एडवोकेसी और एक्टिविज्म करूंगा, और बहुत सारी प्रशासनिक और पॉलिटिकल लॉबीज में अप्रिय हूँ, बहुत जगह प्रिय भी हूँ, सम्मानित हूँ, लेकिन बहुत जगह अप्रिय हूँ, क्योंकि मैं एस्टेब्लिशमेंट के अंदर रह के एक्टिविज्म करने में मानता हूँ। जैसे मनोविकास के साथ और मौका मिला है एनजीओ से जुड़ने का भी, कुछ एनजीओ से मुझे विचार आते हैं 3 लेवल के। अगर हम थोड़ा, जो हमारे एकेडमिक क्लाइंट साथी हैं, पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स हैं लोग, और साथी बताएं, देखिए एटलीस्ट 3 लेवल की बात हम कर रहे हैं, हमारे तीनों साथी और आप और हम। एक तो है सबसे पहले डिस्क्रिमिनेशन या अनफेयर ट्रीटमेंट के अगेंस्ट प्रोटेस्ट करना, असमानता के विरोध में खड़े होना। दूसरी बात है एम्पावरमेंट या सबलीकरण, और जो सारे हक हैं अलग अलग क्षेत्र में वो मिले, तब जाके कहीं समानता का अधिकार बनता है। तो जो बातें कही गई खासकर सुवर्णा के द्वारा और बाकी साथियों के द्वारा, शुरुआत अक्सर होती है वहीं से, असमानता के या डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट विरोध प्रदर्शित करना या प्रोटेस्ट करना। दूसरी तरीके से सोचें तो एक्टिविज्म या एडवोकेसी अलग अलग लेवल पे हो जाती है, और जैसे आपने कहा, तीनों साथियों ने, आपने बहुत अच्छा स्पेक्ट्रम चुना है। सामुदायिक स्तर पे, सामाजिक स्तर पे, कम्युनिटी लेवल पे क्या एक्टिविज्म या एडवोकेसी हो, जिससे समाज के जो हम सब अंग है, समाज के नागरिकों का समुदाय जज करने को बुला रही है ना, 5 मिनट लगेगा, मुझे एक कॉल लेना पड़ेगा भाई। उनका मेल सर, you have to unmute, sir. You have to unmute, sir. Now, yeah. Okay. तो सामुदायिक और सामाजिक स्तर पे जो एक्टिविज्म एडवोकेसी वो एक प्रकार की हुई। दूसरा हुआ, जैसे आई थिंक कपिल बता रहे थे, लीगल रिड्रेसल। सामुदायिक या सामाजिक डिस्क्रिमिनेशन एक बात है, अगर लीगल राइट्स नहीं मिल रहे हैं तो उसके लिए जो एडमिनिस्ट्रेटिव या गवर्नमेंट एडवोकेसी हो। तीसरा जो अरमान ने बहुत अच्छा बताया, जावेद आबिदी की हेरिटेज से जो जारी रखी है मुहिम पॉलिसी लेवल पे। तो हम समझे कि अगर हम में से कोई एक व्यक्ति, या जैसे अरमान ने बताया, अगर बहुत सारे संस्थान मिलके हर स्तर पे काम कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। और मुझे लगता है आलोक, मनोविकास से आप कोशिश वो कर रहे हो, लेकिन ऐसा ना भी हो तो किसी एक खास केंद्र बिंदु पे, एकाध मुद्दे पे एक्टिविस्ट एडवोकेसी करना अपने आप में बहुत काबिले तारीफ है। जब तक हम ये करें, जो अरमान ने बात बहुत अच्छी कही कि हम सबको मिलके काम करना पड़ेगा। मुझे आखिरी मुद्दा ये सोचता है कि हमने अक्सर बात की, और ये थोड़ा सा नाजुक है। अरमान ने जैसे बात बताई बहुत अच्छी, अक्रॉस डिसेबिलिटीज एक कलेक्टिविज्म हो, उसको फाइट भी नहीं कहूंगा, कलेक्टिविज्म हो। साइकोसोशल डिसेबिलिटीज या इंटेलेक्चुअल एंड डेवलपमेंटल डिसेबिलिटीज अभी भी कुछ हद तक जरूरतमंद है इंटरनल एडवोकेसी की विद इन द डिसेबिलिटी सेक्टर। दिव्यांगता के क्षेत्र में इंटरनल एडवोकेसी जरूरी है, आईडीडी के बारे में या पूरा जो स्पेक्ट्रम है साइकोसोशल डिसेबिलिटी के बारे में, और उससे जुड़ा मुद्दा है जो मल्टीपल डिसेबिलिटीज है उसके बारे में। आप सब दोस्त हैं, जानकार हैं, अभी भी अनफॉर्चुनेटली एक्सेसिबिलिटी या इवन एम्प्लॉयमेंट बात रुक जाती है लोकोमोटर या हियरिंग या विजुअल डिसेबल्ड तक आके। बहुत कम हो पाता है कि साइकोसोशल डिसेबिलिटी या आईडीडी वालों की
उनकी एक्सेसिबिलिटी की बात अलग हो जाती है. देयर एक्सेसिबिलिटी इज अबाउट सोशल इंक्लूजन. इट्स नॉट अबाउट फिजिकल एक्सेस, रैंप एंड दी फिजिकल स्ट्रक्चर्स. तो अरमान की मुझे वो बात बहुत अच्छी लगी जो जावेद साहब भी करते थे. हमें 21वीं सदी में उसको और अलग स्तर पे ले जाना पड़ेगा कि हम अक्रॉस डिसेबिलिटीज समानता रख पाए, वहां असमानता ना हो जाए और उसके लिए कलेक्टिवली काम कर पाए. Great. So you have opened the very wider perspective. और सर मैं जो देख रहा हूँ, एक तो जो सुवर्णा वाली बात थी कि अगर हमारे मन में कुछ है, if you start doing it, it will become a मुहिम and later on you'll see the change. और जो क्रॉस डिसेबिलिटी वाली बात कही सर, वो तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है. और आज के डेट में अगर हम अपने जो भी इंटेलेक्चुअल एंड डेवलपमेंटल डिसेबिलिटीज वाले के बारे में बात करते हैं, वहां पर अगर आप कभी कभी देखें तो पेरेंट्स लेवल में एडवोकेसी है कि पेरेंट्स कर रहे हैं या फिर कोई इंस्टीट्यूशन कर रहा है, लेकिन इंडिविजुअल लेवल में अभी भी बहुत कम है. तो हमारे जो भी यहाँ पर जितने भी दर्शक हैं, मैं जितने भी श्रोतागण हैं, मैं आपसे यही आग्रह करूंगा कि आप अगर किसी बच्चे के माँ बाप हैं या आपके बच्चे में कोई लगता है कि वो उसको कोई चाहत है, तो आप भी आवाज उठा सकते हैं और अपने बच्चे को भी या कोई पर्सन विद इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी या साइको सोशल डिसेबिलिटी वाले लोगों को भी बोल सकते हैं, आगे आए और बात करें. और हमारा समाज हर चीज को बहुत ही अच्छे मुकाम तक लाने के लिए अग्रसर है. So once again I'll say मेरे जितने भी ऑडियंस हैं, I'll take 1 or 2 questions sir, इसमें हमें लगा कि yes, Balmeet, Dr. Balmeet और had a question. Yes sir, yeah. कोई बच्चा जिसके ब्रेन का माइंड का ऑपरेशन हुआ है, कहाँ से सर्टिफिकेट समझना ये पड़ेगा कि जो कपिल ने बात कही सही है कि दिल्ली सरकार ने बहुत आसान कर दिया काफी हद तक, लेकिन फिर भी जो भारत सरकार के कानून और रूल्स है वो लागू होंगे. 18 वर्ष से कम बच्चों के लिए हमें मोटे तौर पे आईटीडीज के लिए संपर्क करना पड़ेगा जो बच्चों का विभाग है, पीडियाट्रिक्स डिपार्टमेंट जनरल हॉस्पिटल के वहां पे. तो डॉक्टर बलमीत कौर से मेरी जितना उन्होंने मैसेज किया, मुझे यही समझ आई कि बच्चे को किसी जनरल हॉस्पिटल में हो सके तो लोकनायक अभी कोविड हॉस्पिटल डिक्लेयर किया हुआ है, लेकिन बाबा साहब आम्बेडकर में या कहीं पे बच्चों के विभाग में संपर्क करना पड़ेगा. ग्रेट. और दूसरी बात मैं आप सभी को बताना चाहूंगा कि जो नई शिक्षा नीति है, वी आर प्रिपेयरिंग. हमने सर से अभी बात नहीं किया, हम लोग उस पर भी चर्चा करेंगे, जरूर चर्चा करेंगे. एंड प्लीज यू हैव एनी क्वेश्चंस, यू प्लीज ड्रॉप इन द मैसेज बॉक्स. आई वुड लाइक टू टेल यू हियर कि जो मनोविकास है, दिस इज वर्चुअली ओपन. We have the telecounseling services 9911107772 या फिर manovikas.family पर आप अगर बात करना चाहें तो वहां पर भी आप हमें बात कर सकते हैं, या मन भावन में बात कर सकते हैं, मशवरा में बात कर सकते हैं. आपके मन में कोई भी विचार हो तो आप हमारे तक जरूर साझा करें. Now we'll go to Subarna again. मैं एक बता रहा हूँ, हम सबकी तरफ से दो जुड़े मुद्दे हैं और ये हमारे 3 साथी कुछ अपने अगले विचार बताएं. एक तो ये कि एडवोकेसी या एक्टिविज्म हमेशा स्मूथ राइड नहीं होती है. यस यस. आज हमारे तीनों साथियों ने बहुत शालीनता से अच्छी बातें बताई, लेकिन मेरा आग्रह ये रहेगा कि अब के कमेंट्स में हमारे तीनों साथी जरा जो नॉन सक्सेसफुल या अनकंफर्टेबल या इवन कॉम्बेटिव प्रोसेसेस रहे हों वो भी शेयर करें. और दूसरी बात, उसके कारण एडवोकेट्स या एक्टिविस्ट को खुद क्या झेलना पड़ता है. यस, ये राह बहुत कठिन है. एडवोकेसी राह बहुत कठिन है. तो मेरा आग्रह रहेगा कि हमारे तीनों साथी जरा वो बात भी बताएं, बिना निराश हुए हम बाकी साथी समझ पाए कि कौन सी चीजें मुश्किल होती हैं और उन मुश्किलों का सामना कैसे किया जाए. ग्रेट ग्रेट. सो सुवर्णा जी, यू हैव सेम क्वेश्चन जो मैं पूछने वाला था. सॉरी. मुझसे अच्छा शायद तो मैंने फेस किया है, शायद कोई मैं मतलब बताऊं किसे. आपको शायद याद होगा अभी 2 साल पहले पंचकुला में नेशनल्स हुआ था, जिसमें 2000 के आसपास बच्चे थे पूरे नेशनल के लिए. उसके बाद नेशनल्स में जब आपके मेडल्स आते हैं या सिलेक्शंस होते हैं तो आप इंटरनेशनल लेवल पे
पार्टिसिपेट करते हो। और नेशनल हमारे लिए एक बहुत बड़ी चीज होती है कि एटलीस्ट पर्सन विद डिसेबिलिटीज को एक मेडल भी आ जाता है, तो उसकी तरह उसके हिसाब से उसको एक स्कॉलरशिप भी मिल जाती है, एक मेडल के लिए स्कॉलरशिप मिलती है। तो मैंने वहां जाते ही पहले ही दिन हमें जमीन पर सोने के लिए बोला गया। तो हमने कहा हम जमीन पे कैसे सोए आप ये बताइए। तो मैंने कहा चलो ठीक है, एक बार हम जमीन पे सो भी जाएंगे, मान लिया। फिर हमको उन्होंने वॉशरूम्स दिखाए, वो इंडियन थे। मैंने कहा हम जमीन पे सो तो जाएंगे, लेकिन इंडियन वॉशरूम तो गलती से भी नहीं यूज कर सकते। तो उन्होंने कहा आपको रहना है तो रहिए, अगर नेशनल खेलना है तो खेलिए, अदरवाइज आप घर जाइए। मैंने तुरंत ही, मतलब मैंने सिर्फ पहले रिक्वेस्ट करी, 1 या 2 घंटे करने में बोल लगा, उसके बाद तुरंत मैंने ट्वीट किया, मीडिया आई, नरेंद्र मोदी तक ये बात पहुंच गई थी। और उसका जो खामियाजा मुझे भुगतने पड़ा वो ये था कि उन्होंने मुझे नेशनल में पार्टिसिपेट ही नहीं करने दिया। और मतलब मैं इतना रोई भी थी उस दिन, क्योंकि उसके बाद मेरा अचानक एक इंटरनेशनल टूर्नामेंट था। आपको एक क्वालिफाइंग स्टैंडर्ड मेंटेन करना होता है नेशनल्स में, तब आप इंटरनेशनल पे एक लेवल पे जा सकते हो। तो उसका खामियाजा मुझे लगता है मैं अकेली नहीं हूँ, ऐसे बहुत लोग हैं कहीं ना कहीं कि जिनको इन सब चीजों के लिए ना लड़ना पड़ता है। आपको यकीन नहीं आएगा, कई बार तो मैं ये भी सुन चुकी हूँ अपने लिए, यार स्वर्णा को जॉब पे रखे या ना रखे। अगर जॉब पे रखेंगे तो यार इसको आरटीआई के बारे में पता है, इसको एडवोकेसी के बारे में पता है, इसको पता है कि इसको क्या करना है, तो इसको रखने से पहले 2-4 बार सोच लेना चाहिए कि हाँ जॉब पे। तो कहीं ना आप इन चीजों को भी आपको फेस करना होता है। अगर आप लड़ रहे हो तो कहीं ना कहीं उसका गलत इम्पैक्ट भी आपके प्रोफेशन पे या आपके डिग्निटी पे पड़ता है। बट मुझे लगता है कि अगर मैं किसी 100 का भला कर रही हूँ और अपने लिए थोड़ा सा नुकसान हो रहा है तो वो भी सही। उसके बाद यकीन मानिए जो ट्वीट हुए, जो मीडिया आई, वहां पे वो सारा खुलासा हुआ, एक बहुत बड़ा जैसे शादी का हॉल होता है, 400-500 लोगों के लिए गद्दे बिछाए गए थे, वो सब कुछ मीडिया में आ गया। उसके बाद जो ऑर्गेनाइजर था उसको अचानक अटैक आ गया, वो हॉस्पिटलाइज हो गया। हमें नहीं पता था कि उसको सच में आया है या नहीं, क्योंकि 50 लाख से ज्यादा, आई थिंक 1 करोड़ के आसपास उस नेशनल्स को स्पॉन्सर हुआ था। वो खट्टर जी जो थे, मनोहर लाल खट्टर जी, उन्होंने खुद उसको पैसे भी दिए थे उस स्पोर्ट्स को कंडक्ट करने के लिए, और बाद में उनका वो सारा लॉस में चला गया सिर्फ एक मेरी वजह से। तो कहीं ना कहीं उधर उनका नुकसान हुआ, मेरा नुकसान ही हुआ कि मैं नेशनल्स में खेल ही नहीं पाई। तो ऐसे सिर्फ एक जगह नहीं, हर जगह कहीं ना कहीं मुझे मतलब स्ट्रगल करना पड़ा। मैं मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट में थी 4 साल। वहां पे मुझे एज ए कंप्यूटर ऑपरेटर और असिस्टेंट लिया गया था, और उसको मुझसे ना कोई काम ही नहीं करवाते थे। कंप्यूटर तो मुझे कभी छूने ही नहीं दिया। उनको लगता था यार ये व्हीलचेयर पे है तो शायद इसका माइंड भी कोई काम नहीं करता। मैं उनको बताती थी कि मैं एग्जाम दे के आई हूँ, मैं इंटरव्यू दे के आई हूँ, आप मुझे काम तो दो। दे सेड नहीं, आप डिस्पैच करो, आप डिस्पैच के लिए ठीक हो। तो मैंने 2-3 दिन देखा, फिर 1 महीना किया, 2 महीना किया। उसके बाद जब मुझे गुस्सा जब मेरा ऊपर चला गया, मैं यार मैं डिस्पैच करने नहीं आई हूँ, मैं डबल मास्टर्स हूँ, मैं डिस्पैच करने क्यों आऊंगी। तो मैं डायरेक्ट एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के पास गई जो हमारे थे। तो दे सेड कि तुम आके मुझसे लड़ो मत और सिंपैथी मत लो। तो मैंने कहा एक काम करो, मेरी सैलरी आज से घर भेज देना, जब डिस्पैच ही करना है तो मैं नहीं करूंगी, सैलरी वही भेज दो, आप तो सिंपैथी की बात कर रहे हो। दूसरे ही दिन मेरा काम चेंज हुआ है, लेकिन उसका भी खामियाजा ये भुगतना पड़ा है कि कहीं ना कहीं बाद में उन्होंने वो जॉब्स ही खाली कर दी। तो बहुत कुछ सहना भी पड़ता है लाइफ में। और मुझे लगता है कि जितना पर्सन विद डिसेबिलिटी सफर करते हैं ना, चाहे वो कोई भी डिसेबिलिटी हो, कोई भी, बहुत मुश्किल होता है। स्पोर्ट्स में आज भी इतना ज्यादा प्रॉब्लम है, इतना ज्यादा प्रॉब्लम है कि मतलब मैं तो खुद स्पोर्ट्स में भी हूँ, सोशल एक्टिविज्म में भी हूँ, हर चीज में। तो मुझे वो सारी चीजों को इकट्ठा मर्ज किया कर देते हैं कि हाँ, इसको लेने से पहले, चाहे स्पोर्ट्स में लेने से पहले सोच लो या किसी ऑफिस में लेने से पहले सोच लो, तो ये बहुत नुकसानदायक होता है सबके लिए। Great. I have seen that many questions has also started coming out. सुवर्णा जी, आपके लिए बहुत ही अच्छी बात आपने बताई कि खामियाजा जो है वो हर जगह भुगतना पड़ता है, ये तो है। और बहुत लोग आपसे डरते भी हैं कि इसको काम दें या
नहीं नहीं, मैं बता दूं कि सुवर्णा जी इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी में एज ए काउंसलर का काम करती हैं, सोशल वर्क वाले स्टूडेंट्स को पढ़ाती हैं। तो काम है इनके पास, ऐसा नहीं कि काम नहीं है, लेकिन जो हम और आगे प्रोस्पेक्टिव वाले काम करते हैं, जो इनका खेलने का प्रोफेशन है, जो पैशन है खेलने का, उसमें आगे बढ़ने में, तो हमें हर समाज के हर वर्ग के लोगों को ये चाहिए कि हमें इनके बारे में समझना चाहिए। एंड I'll make you remember here कि राखी रमोला के विंडो में सांकेतिक भाषा में अनुवाद उपलब्ध है, किन्हीं को भी चाहिए तो वो आप वहां पर देख सकते हैं। नाउ विल गो टू द कपिल जी। सो द सेम थिंग, जैसे देसाई सर ने कहा कि क्या बाधाएं हैं, सो आई हैव सीन योर वर्क कपिल जी, हाउ यू कनेक्ट ऑल द ग्रुप टुगेदर। आप सारे, कभी देखता हूँ कि यूथ ग्रुप है, कभी महिलाओं का ग्रुप है, कभी बुजुर्गों का ग्रुप है, एंड आई हैव सीन इन योर वर्क यू हैव रिड्यूस्ड द डिस्क्रिमिनेशन, कि आप पूरे विद इन द कम्युनिटी बहुत सारे डिस्क्रिमिनेशन को भी खत्म कर दिया, जो भेदभाव की बात थी वो भी खत्म कर दिया आपने। रिहैबिलिटेशन अप्लायंसेस बहुत लोगों को बांटा आपने, पेंशन्स बहुत लोगों को दिलाया। तो ये सब जो जोड़ना है, इन सब बातों को आप, ये जो मुद्दा है आपके पास, इसमें क्या क्या बाधाएं आपको आती है, कैसे आप इसको दूर करते हैं? जी। कपिल जी। सबसे पहले तो हम लोग काम के साथ साथ एडवोकेसी में ये करते हैं कि हम रीड पिटीशन पे डालते हैं। जैसे हमने सोशल वेलफेयर को, जब भारत सरकार का डिपार्टमेंट अलग हो गया तो दिल्ली सरकार का भी डिपार्टमेंट अलग होना चाहिए था, या सभी राज्यों के विकलांगता विभाग अलग होने चाहिए। तो इसी पे जब हमने रीड पिटीशन डाला हाई कोर्ट में, और उसका हमें जजमेंट भी मिला, उन्होंने जजमेंट में साफ किया कि आप इसको अलग डिपार्टमेंट को बनाइए। और उस पर अभी तक जब हम बार बार मिनिस्टर को या डायरेक्टर को या सेक्रेटरी को या अधिकारियों को इस बात की इत्तला देते हैं कि देखिए हाई कोर्ट का हलफनामा है, हाई कोर्ट का रीड पिटीशन का जजमेंट है, इसको आप देखिए, इसको करिए, क्यों नहीं करते, तब भी उनको ये लगता है कि ये कपिल वैसे तो एनजीओ चलाता है और मतलब सामाजिक संगठन चलाता है, और ये फिर हमें क्यों बार बार प्रेशराइज करता है इस चीज़ के लिए। तो कहीं ना कहीं अधिकारी के दिमाग में लगता है कि एडवोकेसी करने वाले लोग एनजीओ नहीं चलाने चाहिए और एनजीओ चलाने वाले एडवोकेसी नहीं करने चाहिए। ये दिमाग में मेरे फीड हुआ बहुत दिनों से, क्योंकि मुझे लगा कि मैं क्यों सामाजिक संस्था में अनुदान के पीछे इनके लोगों के पीछे भागूं। इसलिए मैंने पिछले कई वर्षों से सरकार में अनुदान लेना बंद कर दिया। मैं अपना इंडिविजुअल छोटा मोटा काम करता हूँ, लेकिन मैं चाहे बुजुर्गों का काम हो, चाहे महिलाओं का काम हो, चाहे यूथ का काम हो, चाहे दिव्यांग लोगों का काम हो, जो मेरे कार्यालय तक आया है, चाहे फोन करके आए, चाहे हेल्पलाइन के थ्रू आए, जो मुझसे बन सकता है। अगर उसके पास फॉर्म नहीं है तो मैं फॉर्म दे देता हूँ। मुझे उसको गाइड करना है कि सर्टिफिकेट कहाँ से बनना है तो मैं उसको गाइड कर देता हूँ। मैं इंडिविजुअल नहीं बोल रहा, मैं मतलब मेरी टीम के साथ, मेरे अलग अलग लोग हैं जो अलग अलग तरीके के काम करते हैं। मैं कुछ लोगों का नाम लेके कुछ लोगों को वो नहीं करना चाहता, लेकिन बहुत सारे लोग, जैसे आलोक सर है, जब मुझे आलोक सर से काम होता है तो मैं आलोक सर से बोल देता हूँ। स्वर्णा से काम होता है, मैं स्वर्णा से बोल देता हूँ। मैं सोनू बोला से काम होता है, प्रदीप से काम होता है, बहुत सारे लोग हैं, मतलब इन लोगों से काम होता है, मैं सबको बोल देता हूँ, अरमान भाई को भी बोल देता हूँ। तो एक दूसरे से काम हो जाता है, उन लोगों को लगता है कि हमारा काम हो रहा है, चाहे छोटा सा काम हो। मैं जो साथी यहाँ सुन रहे हैं, जो पेरेंट्स यहाँ सुन रहे हैं, मैं उनको बताने चाहता हूँ कि काम जब होने को नहीं आता तो बहुत बड़ा लगता है, लेकिन काम जब होने को आता है बहुत छोटा सा लगता है। कई लोग कहते हैं यार ये तो जरा सा काम था, ये तो बहुत बड़ा काम था। तो ये दोनों आपके जब हो जाते हैं, नहीं होते, तब आपको पता चलता है। तो आज हम जूझते हैं इस बात के लिए कि सरकारी जो तंत्र है, जो सरकारी लोग बैठे हैं सीटों पे, वो हमेशा एनजीओ वालों को, सामाजिक कार्यकर्ताओं को अलग नीति से देखते हैं। उनकी जो नजरिया होता है, तीसरी आंख देखने वाला तरीका होता है, वो अलग होता है। कुछ लोग उसमें अच्छे होते हैं, कुछ लोग उसमें बहुत बेकार होते हैं। जैसे मैं अभी समाज कल्याण विभाग में बात करता हूँ कि कुछ लोग अधिकारी ऐसे हैं जो समाज कल्याण विभाग की पेंशनों में इतनी लापरवाही बरतते हैं, कुछ समाज कल्याण अधिकारी ऐसे हैं जो तुरंत कर देते हैं। मतलब ये नजरिया है विकलांग व्यक्ति के प्रति समाज कल्याण विभाग का या पेंशन वाले विभाग का। जब मैं समाज कल्याण विभाग को स्पेशल नहीं कर रहा, जो भी पेंशन में लिप्त है, ऐसी सरकारी सर्टिफिकेट जब बनता है डिसेबल्ड को, या जैसे ही कोई अब डीआरएम ऑफिस से जो हमारा ई कंसेशन ई कार्ड बनता है, उसमें दिक्कतें, तो ये दिक्कतें कहीं ना कहीं आती हैं, दिव्यांग व्यक्ति को आती हैं। और जब हम उसकी एडवोकेसी करते हैं, जब वो हमें अलग निगाह से देखते हैं, तो हमारे अंदर लगता है कि हम क्यों कर रहे हैं, लेकिन हमें लगता है ठीक है हम कर रहे हैं। मैं सोचता हूँ कोई नहीं, हम कर रहे हैं और करते रहेंगे, ये हमारा होता है। दूसरा, कभी भी जैसे आपने क्वेश्चन में अपना पूछा कि आप किस तरीके देखते हैं, हम जैसे मैंने पहले कहा, किसी भी कैटेगरी का, चाहे कोई गरीब हो, चाहे कोई अमीर हो, चाहे कोई विधवा हो, चाहे कोई महिला हो, चाहे पुरुष हो, किसी भी कैटेगरी का, किसी भी जाति का, किसी भी सम्मान का, किसी भी समाज का हमारे साथ आके काम करवा सकता है, साथ जुड़कर भी काम कर सकता है। हम दोनों प्लेटफॉर्म उसको देते हैं।
दूसरी बात रही उपकरण दिलाने की, बहुत सारे समाज कल्याण के साथ, एलिम्को के साथ, CSR के साथ, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस के साथ, और बहुत तकरीबन हर साल 2-2, 3-3 कैंप करके उनको सर्टिफिकेट बनवाना, परिचय पत्र बनवाना, बस पास दिलवाना, अप्लायंसेस देना, ये बहुत सारे काम हम लोगों ने किए हैं। लेकिन वही पिछली बात रिपीट करूंगा कि जिसको आसानी से मिल जाता है वो उसकी शायद कदर नहीं करता, जिसको बहुत कठिन तरीके से मिलता है शायद वो उसकी कदर करता है। तीसरा, हम लोग नए नए मुद्दों पे, चाहे लोन का मामला हुआ, जैसे कि स्पेशल बच्चों के लिए निराया में जो स्कीम है, बहुत अच्छी स्कीम नेशनल ट्रस्ट की है, उसमें ज्यादा लोगों को, जो लोग यहाँ सुन रहे हैं, अगर जो लोग स्पेशल बच्चों के माता पिता हैं, उनको बता दूं कि नेशनल ट्रस्ट की एक स्कीम है जिसको निराया स्कीम बोलते हैं। उसमें आपको एक छोटा सा प्रीमियम देना होता है जो स्पेशल बच्चों के लिए, तो उसमें 1 लाख रुपए तक का इलाज आप किसी भी अस्पताल में कराइए, वो आपको पैसे वापस सरकार के द्वारा मिल जाते हैं। इसका एक छोटा सा कार्ड मिलता है, निराया कार्ड। डिपार्टमेंट जब अलग करने की बात में हम अलग अलग विभागों से या अलग अलग सोशल वेलफेयर के अधिकारियों से बात करते हैं, तो वो अलग तरीके से अपना व्यवहार दिखाते हैं। हमारे कुछ कामों को रोक भी दिया जाता है पर्सनली, इसलिए उन कामों को हमने छोड़ दिया है। मैं अंत में यही कहना चाहूंगा, जो हमारी संस्था का और मेरा व्यक्तिगत रूप से एक सोचना है कि आपके मन में कभी किसी के लिए कुछ करने की भावना ना हो, आप किसी के लिए कुछ ना कर सके, आपके पास कुछ देने के ना हो, आपके पास कुछ ना करने को, तो एक अच्छा मार्गदर्शन जरूर दिव्यांग व्यक्ति का कीजिए, क्योंकि आज दिव्यांग व्यक्ति को मार्गदर्शन की बहुत ज्यादा जरूरत है। और जिसमें बहुत सारे संगठन, मनोविकास जैसे संगठन बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, आलोक सर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और बहुत सारे संगठन इसमें अच्छा काम कर रहे हैं। तो इन सबसे मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इसी तरह से निरंतर आप हमारे साथ काम करते रहिए, हमें मार्गदर्शन देते रहिए और लोगों की सेवा करते रहिए। धन्यवाद। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। कपिल जी, मैं तो देख रहा हूँ कि आपने बहुत लोगों का जीवन संवारा है, और हर एक व्यक्ति की दुआ जो है वो आपको एनर्जी देती है और जिससे कि आप आगे बढ़ते हैं। तो थैंक यू, बहुत ही अच्छा आपने वो कहा कि कैसे आपने आगे बढ़ाया। विल गो टू द अरमान अली जी। अरमान अली जी, आप इतने बड़े बड़े, यू आर रनिंग द बिग कैंपेन इन द सोशल चेंज इन द नेशनल लेवल, इंटरनेशनल लेवल, सभी लेवल पे आपको देखता हूँ कि मैं आपने बड़े बड़े अभियान को चलाया है। सो इन अभियान को चलाने में या फिर इन अभियान से कोई जुड़ा हुआ कोई मुद्दा हो जिसमें चुनौतियां आती हो, व्हाट आर द चैलेंजेस यू आर फेसिंग एंड हाउ यू आर टैकलिंग दैट चैलेंजेस? या चैलेंजेस तो बहुत ज्यादा है, हर चीज में है। सुवर्णा ने कहा, कपिल ने कहा, वो तो है। और आम लोग भी सोचते हैं कि आप एनजीओ में काम करते तो पैसा बहुत कमा रहे हैं आप। ये बहुत बड़ी बात है जिसको कि तोड़ना बहुत जरूरी है। आप पैसा चुराते हैं, आप घपला करने वाले सरकार से आपको करोड़ों रुपया मिल रहा है तभी आप इतना काम करते हैं। पहले तो हर इंसान यही पूछता है कि कितना ग्रांट मिलता है आपको सरकार से। सरकार से तो अच्छा अमाउंट आता होगा, क्योंकि एक सरकार की छवि ऐसी है किसी भी सरकार की कि लोगों को, आम नागरिक को ये लगता है कि ये सरकार विकलांग लोगों को बहुत पैसा देती हुई घर पे रहते रहते तो और मेरे लिए ये प्रॉब्लम है कि लोग, प्रेशर बहुत ज्यादा है। अगर आप अच्छा काम करें, जैसे कपिल बहुत अच्छा काम करता है, बहुत बढ़िया, अभी कोविड में उसने इतना बढ़िया काम किया है, मतलब बहुत बहुत सराहनीय बात है। और क्योंकि विकलांग लोगों के साथ जुड़ा हुआ है, क्योंकि गरीब लोगों के साथ जुड़ा हुआ है, इनको मान्यता नहीं दी जाएगी। वही सोनू सूद को मिल जाएगा, लेकिन कपिल अग्रवाल को नहीं मिल सकता है। तो ये सारी एक बहुत बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। और विकलांगता खास करके एजेंडा के आखिरी पॉइंट के बाद पीछे लिखा हुआ, अगले पन्ने में भी नहीं, उसी पन्ने के पीछे छोटा सा लिखा हुआ एजेंडे में आता है। कोई भी मेन एजेंडा में विकलांगता नहीं है, और उसको एजेंडा में लाने के लिए बहुत ज्यादा दबाव होता है। खास करके एनसीपीईडीपी की बात करूंगा मैं। हर चीज के लिए लोग हमें सवाल करते हैं, ऐसा क्यों नहीं है, वो क्यों नहीं हो रहा है। मेरे बोर्ड के मेंबर से लेके, मेरे कोलीग से लेके, मेरे जितने साथी हैं, सब पूछते रहते हैं। तो एक वो दबाव, और कभी कुछ अगर ऐसा हो कि जिसमें विकलांगता छूट जाए तो खुद अपने आप को इस चीज का जिम्मेवार समझ लेते हैं, यार मेरे कारण नहीं हुआ, या मैंने मेहनत नहीं की, या शायद मैं ये करता तो शायद हो जाता। तो इस जो मानसिक दौर से आदमी गुजरता है, जो तनाव होती है, जो अपने आप को एक गिल्ट फीलिंग होती है, ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि बहुत जल्दी आदमी बदनाम हो जाता है। बदनामी तो दूसरी बात है, एक प्रेशर बहुत ज्यादा है लोगों में। ये समझ कि
हर एक संगठन, हर एक ऑर्गेनाइजेशन इंपॉर्टेंट है, हर व्यक्ति इंपॉर्टेंट है, और सारा कुछ दिल्ली में नहीं होता है, राज्य स्तर पे बहुत कुछ करने के लिए है। इन चीजों को समझाना इस एक बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि हमेशा लोग सोचते हैं कि दिल्ली में ही होगा, मोदी जी के फोन आ जाएगा, सारा काम हो जाएगा। ऐसा नहीं होता है। स्टेट सब्जेक्ट है, डिसेबिलिटी, एजुकेशन, हेल्थ। स्टेट गवर्नमेंट अपना डिसीजन लेती है, अपना एक पॉलिसी मानती है। एक मोटा मोटा जो स्टेट, जो सेंट्रल लॉ है या पॉलिसी, उसको लेके अपने स्टेट में अपने अनुसार उसको ढाल के चलाती है। तो उसके लिए स्टेट लेवल पे काम करना बहुत जरूरी है। तो सारा दबाव अगर सेंटर पे हो, सेंटर के, जब सेंट्रल गवर्नमेंट में चले जाइए, डिपार्टमेंट ऑफ डिसेबिलिटी एम्पावरमेंट पे चले जाइए आप, वो भी यही कहते हैं कि हमने तो सारा निकाल के भेजे, स्टेट वाले नहीं कर रहे तो हम क्या करें। और हमको लगता है कि यहाँ से फोन उठाएंगे दिल्ली से और फोन करेंगे कहीं उत्तर लखनऊ, तो वहां पूरा हिल जाएगा और काम हो जाएगा। ऐसा नहीं होता है। ये सब चीज समझने की जरूरत है। आई थिंक ये बहुत बड़ा चैलेंज है। छोटे छोटे शहरों में, छोटे छोटे डिस्ट्रिक्ट में जब जागरूकता आएगी, जब लोग काम करेंगे, जब अपना हक मांगना चालू करेंगे और विकलांग व्यक्ति अपना हक मांगना चालू करेगा, जब बदलाव वहां दिखेगा, तब जाके इंडिया में बदलाव आएगी। ये दिल्ली में अगर सब कुछ एक्सेसिबल हो जाए, उससे कोई मतलब नहीं है। तो आई थिंक मेरे लिए ये बहुत बड़ा चैलेंज है, लोगों को जोड़ना, समझना, एक आवाज में। अब आपको तो दोनों ही तरफ से चैलेंज है, हुआ तो भी चैलेंज है, नहीं हुआ तो भी चैलेंज है कि क्यों नहीं हुआ। अगर करवाना है किसी को तो वो भी आपके पास आते हैं कि हमें ये करवा दो। तो कभी कभी क्या होता है, जब हम वकालत करते हैं और सिस्टमेटिक लेवल में वकालत करते हैं, जैसे अरमान अली जी ने अभी अपने आपको बताया, तो यहाँ पर जो चैलेंज है वो हमें सरकार के साथ डायरेक्ट चैलेंज हो जाता है कभी कभी। और कभी कभी जो हमारी बेनिफिशरीज है, जो हमारे पर्सन विद डिसेबिलिटीज है, उनके साथ भी होता है। सर, we request all the audience, please drop your message, drop your questions. I'll open the question for for minute. मैं एक बात कह देता हूँ, फिर उसके बाद आपके लिए मैं ओपन करूंगा। I would like to tell you here कि जो हमारा जो मशवरा का ये सीरीज है, हर वेडनेसडे का, हर बुधवार का सीरीज है, वो सीरीज बेस्ट प्रैक्टिसेस पर है। आप सभी से आग्रह है कि आपके पास भी अगर कोई बेस्ट प्रैक्टिसेस हो जो जेन्युइन हो, जैसे आपने अभी देखा कि उनकी पर्सनल इन्वॉल्वमेंट है, उनका व्यक्तिगत एक इन्वॉल्वमेंट है और बहुत ही अच्छे लेवल में इन्वॉल्वमेंट है अरमान अली जी का, कपिल जी का और सुवर्णा का। तो आप प्लीज हमें लिखिए, वो चाहे वो एजुकेशन से संबंधित हो, चाहे केयर से संबंधित हो, चाहे एडवोकेसी से संबंधित हो। तो हमारी जो टीम है, मशवरा टीम, वो जो भी आपकी जो विशिष्ट और प्रभावी प्रस्तुति है उसके लिए आपसे बात करेगी, मूल्यांकन करके, और आपको जरूर मौका देगी। वी आर कमिंग ऑन द नेक्स्ट Saturday on 15th August at 3 p.m. with the new topic on inclusive education. Before going to our thanks, vote of thanks and opening for the our audience, we'll go to the Dr. Desai sir for your final remarks. हेलो, थैंक यू। मैं सुवर्णा को कुछ समय से जानता हूँ, थोड़ी जानकारी थी सुवर्णा के काम के और उसके बारे में ही जानकारी मिली, लेकिन मैं बहुत प्रभावित हूँ कपिल और अरमान दोनों से। इन्होंने जो अपनी चैलेंजेस की बात की वो और प्रभावित कर गई। लेकिन हमें जो लेसन लेने उनसे हम सब ने, और खासकर जो युवा साथी हैं, कि निराश नहीं होना है। सफर बहुत लंबा है, अभी डगर बहुत लंबी बाकी है, लेकिन डिसेबिलिटी राइट्स एंड सोशल इंक्लूसिवनेस इज अ लॉन्ग टर्म जर्नी। हम 20-40 साल पहले जिस स्थिति में थे भारतवर्ष में या विश्व स्तर पे, उससे कुछ बेहतर है, लेकिन अभी बहुत लंबा सफर बाकी है। तो मुझे इन दोनों साथियों की, बल्कि तीनों की संवेदनशीलता और मैच्योरिटी से कुछ संतोष है कि हमारे आने वाले दशकों में भारतवर्ष में ये काम होगा और अच्छे से होगा। थैंक यू सो मच अरमान, कपिल, सुवर्णा, वंडरफुल। And then we'll go to the JC Gupta sir for your final remarks. Yeah. Good afternoon and happy Janmashtami to everyone. हम लोग एडवोकेसी की बात कर रहे हैं। जब हम किसी केस में फंस जाते हैं तो कचहरी में जाकर के हम अपने आप से वकालत नहीं कर सकते, तो यहाँ हम किसी दूसरे व्यक्ति को हायर करते हैं।
जबकि वहां पर प्रोविजन है इफ वी विश वी कैन एडवोकेट आवरसेल्व्स, हम अपना केस अपने आप प्रस्तुत कर सकते हैं। तो जब हम डिसेबिलिटी में एडवोकेसी की बात करते हैं तो यहाँ पर भी वही सेम चीज लागू होती है कि पर्सन डिसेबिलिटी वो अपने लिए खुद वकालत कर सके, अपने अधिकारों की मांग कर सके, अपने अधिकारों के लिए लड़ सके, या कोई दूसरा व्यक्ति या ग्रुप ऑफ पीपल, एडवोकेसी ग्रुप, वो परिवार भी हो सकता है, एडवोकेसी ग्रुप भी हो सकता है, खुद भी हो सकता है, वो कर सकता है। तो हम इसमें करते क्या है, एडवोकेसी के द्वारा वी वांट टू व्हाट इज इट, जो व्हाट इज है, वी चेंज व्हाट इज इनटू व्हाट शुड बी। एडवोकेसी के द्वारा क्या है उसको हम बदल करके क्या होना चाहिए में करना चाहते हैं। जैसे सुवर्णा जी ने कहा कि भाई वो खाने में कीड़े आते थे, रैंप नहीं था, क्लास को फर्स्ट फ्लोर पे लाना था, तो क्या था और क्या होना चाहिए वो हम कर सकते हैं। देन एडवोकेसी के द्वारा वी कैन हैव आवर वॉइस हर्ड ऑन इश्यूज दैट आर इम्पोर्टेंट फॉर द पर्सन विद डिसेबिलिटीज। कि एडवोकेसी के द्वारा जो विकलांग व्यक्तियों की आवाजें हैं जो नहीं सुनी जाती, उनको हम सुना सकते हैं, पहुंचा सकते हैं, जिसके लिए अरमान अली जी बहुत जबरदस्त काम कर रहे हैं, सुवर्णा जी भी कर रही हैं और अग्रवाल जी भी कर रहे हैं। तो एडवोकेसी के द्वारा वी कैन मेक लाइफ ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज बेटर, और उनको सोसाइटी में हम इंक्लूड कर सकते हैं, सोसाइटी में उनको समान अधिकार दिला सकते हैं जो कि हमारे ह्यूमन राइट्स हैं। थैंक यू सर। ओह ग्रेट सर। हेलो, थैंक जी जी जी। मुझे गुप्ता साहब की विचारों से एक याद ये आई कि जॉन एफ कैनेडी द प्रेसिडेंट वाज किल्ड इन 63. His younger brother Robert Kennedy was killed in 68 before he could become the president. रॉबर्ट कैनेडी ने एक बात बड़ी अच्छी कही थी जो मानवाधिकारों के समाज और सरकार का ये जो मुद्दा है उसमें बहुत लागू होती है, जी गुप्ता जी विचार जाहिर कर रहे हैं। एंड आई कोट, रॉबर्ट कैनेडी सेड, I don't look at things as they are and ask why. I look at things as they can be and ask why not. तो जो अभी सच्चाई है उसे बिना निराश हुए चीजें कैसी होनी चाहिए उसकी तरफ कोशिश किया। प्रश्न हमेशा ये पूछा जाए कि ऐसा क्यों नहीं हो सकता। और आज की जो आपने बात कही, इन तीनों साथियों ने बात कही एडवोकेट्स की, एक्टिविज्म की, वो उसी को प्रतिबिंबित करती है। आई थिंक दैट्स वंडरफुल। ये जो आदर्श है समानता का और सोशल इंक्लूसिवनेस का, इसकी तरफ लगे रहे एवरी वन ऑफ यू। यस, ग्रेट। हम आज आपके लिए भी, हम जितने भी दर्शक हैं सभी के लिए हम ओपन करेंगे, अभी माइक ऑन करेंगे, अनम्यूट करेंगे। हमने देखा है कि ओम प्रकाश जी ने बहुत सारी बातें की कि वैकेंसी स्पेशल एजुकेटर से रिलेटेड या फिर आरसीआई और एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड बातें आपने लिखी है मैसेज बॉक्स में। हम आपका सम्मान करते हैं, लेकिन हम लोग धीरे धीरे जो आरसीआई के मुद्दे हैं या फिर मशवरा, बहुत ही सरकारी प्लेटफॉर्म नहीं है, बट यस आई ऑलवेज एडमायर ऑल ऑफ यू कि आप लोग यहाँ पर सोचते हैं कि आपका मुद्दा यहाँ पर उठने से कुछ बातें बनती है। तो डेफिनेटली वी विल टेक योर मुद्दा टू आरसीआई एंड ऑल दिस थिंग्स। लेकिन हम लोग समय थोड़ा सा टाइम लगेगा। एंड जहां पर हमारे पास बहुत सारे वक्ताओं ने कहा कि कोई वैकेंसी है, तो यस, मनोविकास का जो work.manovikas.family है, आप वहां पर जो वैकेंसी का प्रोफाइल है आप उसमें भर सकते हैं। अगर आप सुटेबल होंगे तो जरूर हम आपके लिए बात करेंगे। कपिल जी का फोन नंबर, कपिल जी मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आप मैसेज बॉक्स में अपना फोन नंबर या कोई ऐसा हो तो जिससे आपको संपर्क किया जा सके। दे दिया मैंने। ग्रेट, थैंक यू। इंश्योरेंस कंपनी के बारे में बात थी कि इंश्योरेंस कंपनी अभी नहीं, कोई भी ऐसे जो दिव्यांगजन होते हैं उनका इंश्योरेंस करने में जल्दी तैयार नहीं होती है। तो मैं ये भी बताना चाहूंगा कि जो पर्सन विद इंटेलेक्चुअल एंड डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी वाले लोग हैं उनके लिए तो निरामया है, बेशक छोटा है, लेकिन एलआईसी और आईसीआईसीआई ने देखा है कि उन्होंने 2-3 ऐसी पॉलिसियां लॉन्च की है जिसमें कि हो सकता है आप अगर अच्छे से उनके वेबसाइट पे देखेंगे तो शायद मिल जाएगा। आई हैव सीन इट। अवेयरनेस लेवल कमी है तो डेफिनेटली ये कम है। और इसी प्रकरण में अगर देखा जाए तो दिस इज द मशवरा एंड अदर वेबिनार्स एंड सेमिनार्स, दीज आर द पॉइंट्स वेयर वी कैन से कि वहां पर अवेयरनेस लेवल को ही बढ़ाया जाता है और आप वहां पर जरूर शामिल होइए। यूडीआईडी कार्ड के लिए बात कही थी, मैंने देखा था कि सोनू भोला जी
you have submitted your UDID card, आज आपने सोशल मीडिया पे लगाया है, तो मैं अभी इसमें थोड़ा सा जोड़ना चाहूंगा। जी जी, जिन लोगों ने भी दिल्ली में यूडीआईडी कार्ड या दिल्ली के अलग राज्यों में यूडीआईडी कार्ड अप्लाई किए हुए, वो जहाँ पे उनका सर्टिफिकेट बना है, जो भी डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट बना है, आप उसके एमएस को कांटेक्ट कीजिए, वो आपका जो पेंडिंग है वहीं पे उसका निवारण होगा। अपने एमएस से उसको वेरीफाई करा दीजिए, आपका यूडीआईडी कार्ड बन जाएगा। एमएस का मतलब क्या हुआ? मेडिकल सुपरिटेंडेंट। मेडिकल सुपरिटेंडेंट, जो आप जिस जिला में हैं, जिस जिला के अस्पताल का आपका सर्टिफिकेट जहाँ पे अप्लाई करते समय लगाया था, उसमें आप उनके एमएस से बात करेंगे। मेडिकल सुपरिटेंडेंट जो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट में जिनका मेन सील होता है, मेन दस्तखत होता है, उनसे करेंगे बात, तो हो सकता है कि आपका यूडीआईडी कार्ड मिल जाए। किसी ने कहा कि फॉर्मेलिटी होती है, जीरो रिजल्ट होता है। मैं अगर कहूंगा कि इंडिया, हमारा जो कंट्री इतना डाइवर्सिफाइड है, इतना बड़ा है कि रिजल्ट दिखने में जीरो लगता है, लेकिन रिजल्ट तो होता है। अगर आप काम करेंगे, जैसे सुवर्णा ने काम किया तो उसका रिजल्ट तो कहीं ना कहीं आया, जैसे कपिल ने काम किया तो कम्युनिटी में पूरे अगर स्टेट में देखा जाएगा तो बहुत जगह काम आया। अगर हमारे अरमान अली जी ने काम किया है तो पूरे नेशनल लेवल में कहीं ना कहीं काम आया है। तो हम अगर बात करते हैं तो रिजल्ट है, लेकिन दिखने में छोटा लगता है। और मैं अभी आप सभी के लिए खोलूंगा। सो बिफोर आई से मैं थैंक यू दे दूं। आई डीम इट इज अ ग्रेट ऑनर टू होस्ट दिस 32 एपिसोड of Mashwara, and thank you all for helping us and participating with us. And first of all, I would like to say my heartfelt thanks to our special speaker, Mr. Arman Ali ji, Kapil Agarwal ji और सुवर्णा जी। बहुत बहुत धन्यवाद कि you came, and आपकी जो बात थी, आपके जो विचार थे, वो बहुत इंस्पायरिंग था। So thank you very much, and I always appreciate, and मैं देखता हूँ कि देसाई सर जो है कि काफी ही एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं और नए डायमेंशन सोचने के लिए मजबूर कर देते हैं कि अगला क्या होना चाहिए। तो थैंक यू सर, गिविंग गुड एनर्जी टू थिंक। सोचने में भी एनर्जी की जरूरत है। एंड माय हार्टफेल्ट स्पेशल थैंक्स टू आवर जेसी गुप्ता सर, एंड आई वुड लाइक टू एक्सप्रेस माय थैंक्स टू आई हैव सीन द मेनी बोर्ड मेंबर्स एंड persons, volunteers from Manovikas, they were here. So thank you very much for joining us. And I'm happy to express the thanks to my all staff, and again the volunteering for big thanks for volunteering to Namo Narayan Pathak ji, and we have the Amjad Hussain and so many our friends, including Adya. So they started volunteering us. तो इससे मेरा बहुत सारा काम आसान हुआ है कि जो हम लोगों को मेल करते थे या व्हाट्सएप करते थे तो हमारा 1-1.5 घंटा जाता था। तो बहुत सारे हमारे वॉलंटियर्स काम करना शुरू किए हैं मशवरा में। अगर और भी किसी को वॉलंटियर करना है तो दे प्लीज कॉन्टेक्ट अस, वी हैव द लॉट ऑफ वर्क टू डू। एंड थैंक यू सूरज, थैंक यू निष्ठा से इज न्यू मेंबर इन मशवरा टीम. She has started writing all the script and all these things. So thank you all. So finally, wonderful guests and audience participants for your active participation. We thank you very much.